हर्षा एंड आज का वीडियो मेरे जूनियर्स के लिए है एंड दिस इज समथिंग आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ टू गेट अ जॉब इनटू DevOps nor I am going to give you any roadmap. This is I'm not qualified to do so. I'm myself a fresher. But जो मैं आज बताने जा रहा हूँ this is something which I have learned from my own struggles and like recently last 3 months में I had interaction with a lot of juniors. I had interaction with lot of my own batchmates. Also I had been getting DMs over LinkedIn, over Twitter as well as over WhatsApp पे थे, सबसे ज़्यादा WhatsApp पे थे कि how I got job into DevOps. और इसमें कुछ लोगों ने मेंशन किया कि they wanted to get into DevOps because they think यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं होती है and these are mostly my college juniors. So आज ना तुम लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है एज अ फेलो सीनियर और कुछ तुम्हें रियलिटी चेक्स देना चाहता हूँ. सी, DevOps is not for freshers in IT. What do I mean by that? Well, if you do not know how applications work, you won't understand DevOps either, and this is a fact. What do I mean by freshers in IT then? Freshers in IT वो हैं जिन्होंने ना कभी एक सॉफ्टवेयर रोल्स में काम किया है, ना उन्होंने कभी सिस एडमिन टाइप की चीज़ों को समझा है, सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम्स प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा. और मे बी तुम नॉट प्रोफेशनली बट एटलीस्ट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इन दोनों में से किसी भी साइड को, you are somebody who is fresh in IT, not from a jobs perspective but even from knowledge point of view. You do not understand anything about SDLC or IT. Now how my journey was कि I had built some applications, basic ones, APIs ही थी mostly. I was learning backend development. I started to write about what I was building over X. Slack पे कुछ communities थी. I was pretty active there. I was sharing my learnings and at the same time I built a project which was using five microservices. उसमें मैसेज क्यूज भी थे, उसमें 2 databases थे डिफरेंट टाइप के, MySQL था एंड Mongo था. उसमें मैंने खुद का API गेटवे इम्प्लीमेंट किया था, बेसिक ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किया था. तो this project got attention and somebody from the community volunteered to mentor me. I was looking out for mentors. For that he even paid me to shadow resource for him. This is how I got into DevOps. So मुझे कुछ तो समझ आता था backend development का. And in general उसी time I was preparing for Linux kernel mentorship program जो कि LFX कराता है. It is an open source program. तो मुझे सिस्टम्स प्रोग्रामिंग का थोड़ा आइडिया था, नेटवर्क प्रोग्रामिंग मुझे समझ आती थी, सॉकेट्स वगैरह. Although I didn't graduate that, but I got that golden chance to contribute to Linux kernel and understand kernel internals. तो कुछ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी आइडिया हो गया था. So when I got into DevOps, my first freelance project, I had some idea about software. I had idea about concurrency. I had idea about how to build basic APIs. I had idea about API pagination. I had idea about authentication. I had some idea about backend पे reverse proxy क्या होती है ना. And yes, जो मैंने को माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट बनाया था वो मैंने कुबरनेटिस पे इम्प्लीमेंट किया था पूरा. स्टार्टेड विद डॉकर ऑन माई सिस्टम, उसमें इम्प्लीमेंट करके पूरा कुबरनेटिस तक गया था. इट वॉज अ होल 2 months जर्नी विच आई वॉज टेलिंग अबाउट इन द कम्युनिटी एज आई वॉज डूइंग. तो वो हम लोगों का ना छोटा सा एक अकाउंटेबिलिटी वाला ग्रुप बन गया था. नाउ दिस इज़ हाउ आई गॉट इनटू इट. मैंने प्रोफेशनली नहीं बैठा, आई वॉज शैडो रिसोर्सिंग, फिर फ्रीलांसिंग में घुसा. एंड लेट मी टेल यू द शेयर अमाउंट ऑफ ब्रेड आई हैड टू कवर. एक मेरा पहला प्रोजेक्ट, इट वॉज ऑन AWS using EKS which is Kubernetes, and फिर it was
using AWS elastic gateway, elastic load balancer, application load balancer, ये सब चीज़ें थी. And this project was in Elixir. I got to work on Helm charts, I got to work on CI/CD part, I implemented some plugins with GitHub Actions. Second project, और बिल्कुल नई चीज़ें सीखनी पड़ी. It was a hybrid, मतलब कुछ पार्ट उनका AWS से Azure से AWS में माइग्रेट करना था प्रोजेक्ट को. एंड दिस वाज यूजिंग जावा एंड डॉट नेट वाले प्रोजेक्ट को पाइथन में माइग्रेट कर रहे थे हम लोग फॉर सम रीजंस. उसमें मुझे बहुत चीज़ें समझनी पड़ी थी. उसमें मुझे सर्वरलेस के बारे में भी समझना पड़ा था, क्योंकि कुछ चीज़ें एज्योर सर्वरलेस पे चल रही थी जो हमको VM वर्कलोड्स पे करना था. लाइक VM पे भी हमने जो क्लस्टर था वो खुद का सेटअप किया था. And we are using Mirantis Kubernetes engine there. तो वो अलग ही कंसंट्रेशन था, वहाँ नेटवर्क्स के बारे में सीखना पड़ा. एंड थोड़ा बहुत डॉट नेट इकोसिस्टम को समझना पड़ा क्योंकि माइग्रेशन हो रहा था. देन थर्ड प्रोजेक्ट मिला, वो भी एज्योर पे था. एंड इट वाज ऑल अबाउट एज्योर सर्वरलेस एंड एज्योर एज्योर वेब एप्स. वहाँ पर एक लेगेसी .NET एप्लीकेशन भी था. तो मुझे जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू सिलेक्ट अ डेटाबेस टियर और उसे डिप्लॉय कैसे करना है, मॉनिटरिंग कैसे सेटअप करनी है, सब चीज़ों की. आई हैड टू अंडरस्टैंड डेटाबेस पार्टीशनिंग. टिपिकली दिस इज समथिंग यू वोंट एक्सपेक्ट फ्रेशर टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ द बॉक्स. हाँ, थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, जितना तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, प्रोजेक्ट्स में काम किया होगा, उतना समझ में आता है. बट जस्ट टू डू दैट आई हैड टू डू दिस. नाउ जब मैं पाइथन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, आई हैड टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार, ये पाइथन में चीज़ें ऐसे होती हैं. ऑल्दो आई वाज नॉट कोडिंग देयर, बट पाइथन वाज माय फर्स्ट लैंग्वेज, राइट. एंड फर्स्ट लैंग्वेज by that I mean language that I use the most. थोड़ा थोड़ा गो आता है, थोड़ा थोड़ा सी भी आता है, थोड़ा बहुत C++ जावा भी समझता हूँ. बट पाइथन एंड गो इज़ समथिंग आई राइट द मोस्ट कोडिंग. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस, जस्ट टू टेल यू दैट हाउ मच breadth I had to cover. Then I came into my internship. एंड पहला जो मुझे काम मिला, इट वॉज ऑल POC अबाउट कि यार एक SRE को किसी ऐसे प्रोजेक्ट में फेंक दिया जाए जहाँ पर इट इज़ ऑल LLMs, पाइथन पे डेटा पाइपलाइंस हैं, तुम्हारा रैग्स हैं. तो वहाँ पर मुझे बिल्कुल ही अलग चीज़ें सीखनी पड़ी. आई हैड टू राइट कोड जस्ट टू अंडरस्टैंड what all things are needed to run these applications. I had to document each and everything. So here I had to read about how to implement plugin architecture in Python. फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है, क्रिएटर पैटर्न क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं इन पैटर्न्स को. बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग एप्लीकेशंस और तुम्हें इस टाइप की चीज़ों पे काम करना होता है, प्लग एंड प्ले, और कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स. I had to read about LLMs, I had to read about RAG, I had to read about agents, I had to read about LangChain. Then vector databases पे आए, तो vector databases पे, then inference services पे आए. फिर इनको मॉनिटर करना था, इनको प्रोफाइल करना था इन एप्लीकेशंस को. I had to deploy in Kubernetes. Then on Kubernetes also I had to work on the part of understanding कि security risks क्या हैं. इतनी चीज़ें करने के लिए आई हैड टू गो थ्रू ऑल दिस, एंड फॉर दैट आई नीडेड टू नो कोडिंग. सो यहाँ पर मुझे कोडिंग काम आई. राइट, आई एम वर्किंग विद सर्विस मैशेस, जहाँ पर मुझे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के साथ काम करना है ना. एंड देयर मुझे थोड़ा बहुत गो कोड भी लिखना पड़ा था. फिर कोड के बाद वी वर ऑन टू इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ थिंग्स. I had to understand cookies, I had to understand reverse proxies, I had to understand gateways, I had to understand mutual TLS, I had to understand L3 L4 ट्रैफिक कैसे फ्लो होती है कुबरनेटिस पे, एप्लीकेशन लेयर पे लोड बैलेंसिंग और नेटवर्क लेयर पे लोड बैलेंसिंग अलग अलग कैसे है, पीयर ऑथेंटिकेशन क्या होता है. बैक एंड लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे ये समझना पड़ा था कि यार ये बताओ
व्हाट इज़ बेसिक ऑथेंटिकेशन, कुकी ऑथेंटिकेशन, टोकन ऑथेंटिकेशन, डिप्लॉयमेंट पैटर्न समझने थे। तो ये सब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता इफ़ आई हैड नॉट फोकस्ड ऑन माई फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स इज़ कि तुम से अगर मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, इससे तुम कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तुम कोई बैकएंड नहीं काम कर रहे हो, तुम कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो। सो व्हेन डिबगिंग इश्यूज, कैन यू थिंक फ्रॉम द लेवल ऑफ एन HTTP रिक्वेस्ट, लेट अलोन कि ये फ्रेमवर्क कैसे करता है कोई चीज़। या मान लो तुम ORM के साथ काम कर रहे हो, आर यू एबल टू थिंक एट अ लेवल ऑफ द SQL क्वेरी दैट गेट्स पास्ड ऑन। तो N+1 प्रॉब्लम समझते हो क्या। सो अगर तुम ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे चीज़ें देख पा रहे हो, एंड देन तुम ऐसे बंदे हो जिसे रोज़ नई नई चीज़ें सीखना पसंद है, DevOps इज़ द फील्ड फॉर यू। शुड गो, यू विल एन्जॉय इट। अदरवाइज प्लीज़ 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 डोंट डू DevOps। अगर तुम्हें इस इंप्रेशन में हो कि तुम्हें कोडिंग नहीं करनी पड़ी थी और DevOps ईजी है, प्लीज़ इस इंप्रेशन में मत रहना। नाउ हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि यार DSA नहीं होता है, तो हाँ, मोस्ट कंपनीज वोंट आस्क इट, बट इफ़ यू आर गोइंग इनटू रिलेटेड रोल सच एज SRE और क्लाउड इंजीनियर, तो देयर आर कंपनीज दैट आस्क DSA राउंड्स होते हैं। जहाँ DSA नहीं होता वहाँ पर सिस्टम डिज़ाइन जैसे राउंड्स होते हैं, जहाँ पर तुम्हें एक सिनेरियो दिया जाता है, इधर इट इज़ अ लाइव सिनेरियो और हाइपोथेटिकल सिनेरियो, यू हैव टू वॉक थ्रू द ओवरऑल सॉल्यूशन। तुम्हें प्रॉब्लम्स बतानी होती हैं, मोस्टली दीज आर अराउंड डेटाबेस माइग्रेशंस, क्लाउड माइग्रेशन, CI/CD पे होते हैं अलग अलग पे। और ये सिनेरियोस तब तक नहीं आंसर कर पाओगे जब तक तुम्हें ये नहीं समझ आता कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, सॉफ्टवेयर को चलाया कैसे जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है। CI/CD में तुम 4 स्टेप इम्प्लीमेंट कर दोगे, पर फिर जब तुम्हारी ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी पे आएगी, तुम्हें गिट यूज़ करना है, तो जब गिट ही नहीं समझ में आएगा, ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी क्या समझोगे। तुम्हें डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जो समझना होगा, तुम्हें वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट समझना होगा। ना दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली डेवऑप्स, बट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी का एस्पेक्ट तुम्हें हर IT रोल में समझना होता है। बी इट सॉफ्टवेयर डेवलपर, बी इट डेवऑप्स, बी इट्स ऑडिटर, कोई भी रोल में हो यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी। वो तब तक नहीं समझ में आएगा अनटिल अनलेस यू डू नॉट अंडरस्टैंड डिपेंडेंसीज सॉफ्टवेयर में होती क्या है पहले तो, लेट अलोन डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, लेट अलोन सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स, ये तब तक नहीं समझ में आएंगी। एक लाइब्रेरी के एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे इंक्रीमेंटल माइग्रेशन कैसे किया जाता है, एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे स्विच कैसे होती है एप्लीकेशन। अब ये सब ज़रूरी नहीं तुम प्रोडक्शन लेवल पे सब कुछ जानो, प्रोफेशनली जानो, एटलीस्ट खुद से कुछ इम्प्लीमेंट करके देखो ये चीज़ें। I did it myself, that is why I am speaking, that is why I can understand documentation. एंड अगर ये चीज़ें तुम कर सकते हो, अगर तुम चीज़ों को फर्स्ट प्रिंसिपल से देख कर कुछ भी नया सीख सकते हो, DevOps इज़ द फील्ड फॉर यू, यू विल एन्जॉय इट। बट द थिंग इज़, फर्स्ट प्रिंसिपल्स तब तक अच्छे नहीं होंगे जब तक तुम्हें बेसिक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ में आता, और दूसरा तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आती। दैट इज़ वाई आई से if you are into DevOps, don't skip coding and don't do DevOps if you think DevOps is easy और DevOps में कोई coding नहीं होती है। You still need to understand IT processes, you need to understand how software is developed in general, software architecture समझना पड़ता है। अभी I am working with service meshes, right? और वहाँ पर edge proxies हैं, वहाँ पर बेसिकली मुझे पूरा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर समझना पड़ रहा है, सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन समझना पड़ रहा है, ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक में MTLS क्यों यूज़ करते हैं, और फिर इस टाइप की चीज़ें, सर्विस डिस्कवरी क्यों ज़रूरी है, सर्विस रजिस्ट्रीज क्या होती हैं, डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सब नहीं समझ में आएगा until unless have built application, try to deploy it somewhere on some cloud or on some खुद के सर्वर पे, लोकल सर्वर, होम लैब हो सकती है तुम्हारी। दिस इज़ द थिंग, हर रोज़ कुछ नया है। आज एक टेक स्टैक के साथ काम कर रहे हो, कल को परसों को नया टेक स्टैक पकड़ने को मिल जाएगा। हर टेक स्टैक में चीज़ें बहुत चेंज होती हैं, बट जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेम होते हैं। एंड ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं तभी समझ में आते हैं जब तुमने उन रिलेटेड चीज़ों पे काम किया होता है। सो और दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर DevOps, राइट?
डेवऑप्स से रिलेटेड फील्ड्स हैं, लाइक SRE है, क्लाउड इंजीनियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर है, सिस्टम्स इंजीनियर है, ये वहाँ पर भी चीज़ें वैलिड हैं. सिस्टम्स इंजीनियर का ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट हाँ आई कैन से फॉर SRE एंड क्लाउड. I am working as SRE. I worked in both DevOps role and a cloud engineer role. Cloud engineer DevOps freelancing पे तो तुम कह सकते हो it was not a professional one, but ठीक है, that's the thing. I'll leave it upon you to think. But this is a message that I wanted to give. और ठीक है, बाय बाय. मन हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना. आई एम नॉट इन अ मूड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल आउट ऑफ इट. व्यूज़ आ गए तो कर लूँगा, बट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. बाय.